ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے نجات۔ آج کا ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ نجات۔ خدا کی مقدس کلام میں سے ایک دفعہ پھر میں حوالہ دہراؤں گا یوحنا رسول کی انجیل تیسرا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ خدا ان کے مقدس پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ آمین کا میں نے مطلب پہلے بتایا تھا۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ نجات کیا ہے، یعنی نجات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ جب ہم خداوند کے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے مقدس کلام میں پرانے عہد نامہ میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسی باتیں موجود ہیں یا مختلف الفاظ جو ہیں اس کے نجات کے بارے میں آئے ہیں، لیکن اس کے بہتر اور صحیح مفہوم کو جاننے کے لیے ہم جو ہے اس کا ضرور ہے کہ عبرانی اور یونانی متن میں اس کو ضرور اس کی اصطلاحات یا اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں۔ جب ہم خداوند کے مقدس کلام کو بڑی گہرائی سے پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ کے مطابق جب ہم لفظ نجات کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پرانا عہد نامہ زیادہ تر جو ہے مفکرین جو ہے اور ترجمہ نگار جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ کس زبان میں لکھا گیا جی؟ کس زبان میں؟ کس زبان میں؟ عبرانی زبان میں۔ کتنے سالوں سے کلام مقدس بیان ہو رہا ہے؟ کتنے سالوں سے؟ کوئی بتا سکتے ہیں جی؟ کتنے سالوں سے کلام مقدس بیان ہو رہا ہے؟ جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو پہلے زبانی شریعت جو تھی، زبان در زبان، نسل در نسل جو تھی، وہ زبان کے ذریعے سے جو ہے ان کو بتایا جاتا کہ نسل در نسل خداوند کا کلام زبانی شریعت کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے تحریک بخشی موسیٰ، مقدس موسیٰ کو کہ ان کو کیا کر تو لکھ لے اور عہد کے صندوق میں کیا کر تو ان کو عہد کے صندوق میں رکھ لے۔ اب جو ہے ہمارے پاس خداوند کا مقدس کلام دونوں عہد ناموں میں موجود ہے، اور پرانا عہد نامہ عبرانی میں اور نیا عہد نامہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ مفکرین جو ہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ارامی میں بھی لکھا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ادر زبانیں جو ہیں مختلف زبانیں استعمال کی گئی ہیں، لیکن نئے زبانہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یونانی میں اس چیز کو بیان، یہاں پر جو بیان ہے اس بات کو ذہن میں رکھے گا، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سالویشن، جس کا مطلب نجات ہے اور اس کے معنی ہے رہائی، چھٹکارا، خلاصی دینا، گناہوں کی معافی۔ اور جب ہم اس کو یونانی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا لفظ ہے سوتریون، اس کا لفظ ہے جی سوتریون۔ اس لفظ کا مطلب ہے مخلصی اور گناہوں سے معافی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو نجات کے لیے بہتر طور پر الفاظ جو ہیں عبرانی میں سے اور یونانی میں سے ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو نجات جو ہے کتنے حرف تہجی سے مل کر بنا ہے؟ کتنے؟ کون کون سے مل کے ہم کہیں گے؟ کون کون سے؟ نون اور تیسرا اور دوبارہ سے نون، جیم، الف اور اب نون سے جو بنتا ہے وہ ہے نکالنا یا نکلنا۔ اور جب ہم اس کو خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے حوالہ جات جو ہے وہ بہت سارے موجود ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں خدا نے ایک عظیم کام کیا اور ملک مصر سے جو تھا وہ کس کو نکالا؟ کس کو؟ اور جیم سے جو ہے وہ بنتا ہے جہالت یا گناہ۔ جب جہالت کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو جہالت جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو وہ گناہ کو درشاتا ہے۔
जीन से जहालत और अलफ से क्या है? आजाद करना। अलफ से क्या है? आजाद करना। और ते से क्या बनता है? तौबा करना, तब्दील होना, तब्दीली होना। अब ये याद रखें, हमने चारों हरूफ तहजी में इन चीजों को देख लिया। पहला कौन सा था? नून यानी निकलना या निकालना, जीम जहालत और इंडेफिनेशन जो है गुनाह, और फिर उसके बाद जो तीसरा था वो अलिफ से क्या था? आजाद या आजादी। और फिर चौथा क्या था? ते से तौबा। और जब हम इसको दूसरे अल्फाज में देखते हैं, अब खुदा ने क्या किया? सबसे बेहतर कहानी जो हम सीख सकते हैं वो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम मिस्र के बारे में, खुदा पुराने अहदनामा में इस बात को रिटन और लिखवाते हैं मुकद्दस मूसा की मार्फत, और वो कहते हैं कि जब इस्राएल जो था वो रोना और कुर्लाना शुरू किया, जब वो गुलामी में था, तो उनकी गुलामी की आवाज सुनकर खुदावंद यहोवा पाक खुदा कोहे हुर्रम के ऊपर जो है एक जलती हुई झाड़ी में जाहिर हुआ। अब वो झाड़ी जो है वो दूर से इस तरह लग रही है कि जल रही है, लेकिन जब नजदीक गए तो एक भी उसका पता नहीं चला। तो मुकद्दस मूसा ने जब देखा कि झाड़ी जो है वो जल रही है, और जब उसके नजदीक जाते हैं तो कहते हैं खुदावंद की आवाज आती है और कहते हैं कि अपने पांव से जूती उतार दे। अपने पांव से क्या कर तू? जूती उतार दे, जूता उतार दे, क्योंकि ये क्या जगह है? मुकद्दस पाक जगह है। इसलिए तुझे जरूर है कि जूते के बगैर तू मेरे पास आए। और जहां पर खुदावंद खुदा की हजूरी होती है, जहां पर खुदावंद खुदा मौजूद होता है, वहां पाकीज़गी होती है और वहां पर नजासत ठहर नहीं सकती। उसी बात याद रखें। जब हमने देखा कि नून का मतलब है निकालना, नून का मतलब क्या है? और जब खुदा ने उसका आहो नाला सुना तो खुदा कहते हैं मैंने इस्राएल का आहो नाला सुना और मैं उतरा हूं ताकि उनको मैं उस मिस्र से, गुलामी के घर से निकाल ले आऊं। और यही वो हमने देखा था कि नून से क्या है मतलब? निकालना। खुदा ने उनको वहां से निकाला, और जब निकाला तो ये बात याद रखें कि मिस्र जो था वो दुनिया को जाहिर करता है। मिस्र जो है वो दुनिया को जाहिर करता है, और जब दुनिया को जाहिर करता है तो याद रखें खुदा ने उनको दुनिया में से, वो दुनिया जो गुनाह से भरी हुई थी, वो दुनिया जो गुलामी से भरी हुई थी, अब हमने देखा कि खुदा ने वहां से उनको निकाल दिया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जहालत वैसी की ही वैसी है। नस्ल इंसानी में जब आदम ने गुनाह किया, तो जब गुनाह हमारी जिंदगी में सराहियत कर गया, हम जहालत के घोर अंधेरों में पड़ गए। हम जो है वो टटोलते फिर रहे थे, हम जो है वो गुनाह की गुलामी में फिर रहे थे। क्योंकि जब हम किसी के मतहत हो जाते हैं, जिसकी फरमाबरदारी करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखें वो उसका गुलाम बन जाता है। फिर क्या हुआ कि आदम ने जब गुनाह किया तो फिर नस्ल इंसानी जहालत गुनाह की गुलाम बन गई। जिस तरह इस्राएल जो थी वहां पर क्या थी? गुलाम थी। वहां पर क्या थी? और जब वहां से निकल भी आई तो उन्होंने क्या कहा? मुझे बहुत दिन वो याद आते हैं, उथे हांडियां सन, उथे खीरे सन, हम गोश्त खाते थे, हम भुला करते थे, खुदावंद हमें गोश्त दे। तो खुदावंद खुदा की कुदरत बयान करती है और खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हें गोश्त दूंगा, तुम्हें मैं आसमान से बटेरे भेजूंगा। और जब बटेरे आए तो तकरीबन 6 फुट के करीब और उससे भी ज्यादा की ढेर जो है वो उनके यहाँ तक के खैमे जो है उनके बराबर ढेर लग गए। तो खुदावंद ने कहा मैं तब तक तुमसे अब गोश्त दूर ना करूंगा जब तक तुम्हारे नथनों से ना निकलना शुरू हो। एक बात याद रखें, नथनों से निकलने की किस्में हमारी ही जो है वो हमारे लिए कोई शर्मीली बात नहीं है।
नथनों से निकलना ये अच्छी बात नहीं है, ये बात याद रखें। बात क्या है, एक शख्स ने क्या किया, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करने लगा, मैं बस बात बताने लगा हूँ। खुदावंद के खादम जो थे वो बयान कर रहे थे, खुदावंद खुदा जो है वो सलीब के ऊपर है, खुदावंद खुदा जो है वो सलीब के ऊपर करा रहे हैं, खुदावंद खुदा के हाथों में कीलें लगी हुई हैं, खुदावंद खुदा वहां पर कह रहे हैं, ए बाप तूने जो है वो मुझे क्यों छोड़ दिया है, उसके हाथों से लहू बह रहा है। तो सब कहते हालेलुया, हेलो कहते जी हाले कहते हालेलुया जी केड़ी गल है कि ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਣਿਆ है। पर सर हमने खुदा की कुदरत के लिए माना। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने पहले बताया कि मैंने किसी को नहीं कहा खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ये नहीं चाहता मैनू ये आ कि ये ना हो बाद जो तुसी फिर खुदा की तारीफ करना बंद कर दो, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं सिर्फ आपको, मेरा मकसद है आपकी रहनुमाई करना, मेरा मकसद है आपको ये रास्ते को तैयार करना। खुदावंद आपको जो है वो इस्तेमाल करे इससे भी ज्यादा। और जब खुदावंद खुदा ने क्या किया, हम चलते हैं अपने मजमून की तरफ, हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। खुदावंद खुदा ने मुल्क मिस्र से जो था वो तमाम 10 कितनी आबादी थी, 10 आबादी कितनी, और खुदावंद खुदा ने 10 आफात के जरिया से तमाम उन मिस्री देवताओं को शर्मिंदा किया और अपने कदमों की धूल बना दिया और बता दिया कि बुलंदों वाला खुदावंद खुदा की जात है, यहोवा खुदा की जात है। देवताओं, ए बुद्धों, ए अथाह घड़े के, ए आलमे असफल के, ए कब्रों के देवता, ए मेंढकों के देवता, ए मगरमच्छों के देवता, ए पाताल के देवता, ए सूरज देवता और बिल्लियों के देवता, तू अपनी हैसियत को ना भूल, तेरे ऊपर खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह हुकूमत करता। यहोवा खुदा के सामने किसी और माबूद की औकात नहीं। हालेलुया, खुदावंद यहोवा खुदा के सामने किसी और माबूद की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा है और वो बुलंदों वाला है। और जब हम देखते हैं खुदावंद ने 10 आफात के जरिए से समंदर का सीना चीरते हुए खुदावंद ने इस्राएल को उसमें से निकाला और देखा है वो खुशकी में से क्या हो गया, गुजर गए। और जब वो गुजर गए तो फिर वो रोना शुरू करते हैं, अभी भी उनके अंदर गुनाह मौजूद है, अभी भी वो गुनाह की गुलामी में है, लेकिन खुदावंद खुदा नजर करता है और कहता है कि मैंने नजर की और मुझे एक भी रास्तबाज ना मिला, कोई नेक नहीं, एक भी नहीं, मुझे बताओ मैं किसको भेजूं। तो खुदावंद खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा है, तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया और वो बदन कौन सा था, खुदावंद यहोवा खुदा की जात जो है वो फरिश्ते को मुकद्दसा मरियम के पास भेजती है, क्योंकि जब उसने देखा कि इंसान अपने तौर पर पाक नहीं हो सकता, इंसान अपने तौर पर निजात हासिल नहीं कर सकता, इंसान के अंदर अंबिया कराम के अमाल या इंसान के अमाले हुस्ना भी मुझे निजात से निजात नहीं दे सके, तो खुदावंद खुदा ने कहा कि ठीक है मैं तुझे भेजता हूं। और जब जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद का बंदा जो पैगाम रसा है वो पैगाम लेकर मुकद्दसा मरियम के पास आता है और कहता है मरियम खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, तुझे बेटा अता किया जाएगा। और इसकी शहादत गैर कौम की किताबें भी बयान करती हैं कि मुकद्दसा मरियम के पास जो है
जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया और उसने कहा तुझे एक लड़के की बिशारत होगी जो पकीज़ा होगा, जिसको शैतान ने छुआ तक ना होगा, जिसको शैतान ने उंगली तक ना लगाई होगी, उसमें इंसानी तुखम ना होगा, उसमें इंसानी अमल दखल। साइंस जो है वो वहां पर बंद हो जाती है, साइंस जो है उसका मुंह बंद हो जाता है, साइंस का मुंह जो है उसका कला जो है वो कमा हो जाता है जब खुदावंद यीशु की जात पैदा होती है। मकसबा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ते आता है और कहता है मरियम तुझ पर फजल हुआ है, देख तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। दुनिया में और कोई नाम नहीं है सिवाय यीशु मसीह की जात के कि कोई गुनाह से हमें निजात दे सके। इंसान जो था वो गुलाम होता वो आया है। इंसान आदम से लेकर खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश तक जो था वो गुलाम था और बीमारियों का गुलाम था, वो हराम कारियों का गुलाम था, ज़नाकारियों का गुलाम था, मौत का गुलाम था। और जब यीशु अल मसीह पैदा होते हैं तो वहां पर लिखा है उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल होगा। और इम्मानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। अब और कोई ये जामा इंसानी जामा पहनकर कोई और शख्स नहीं है, कोई और ऐसी हस्ती नहीं है, ये खुदावंद खुदा की जात है। क्योंकि लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम होता है और हम ऐसा जला देखते हैं जैसा हम बाप के इकलौते का जला। यीशु अल मसीह इंसानी जामा में महज यीशु और बेटा है, लेकिन अलहूयत की सारी मामूरी उसमें सकूनत करती है। और जब इनमें इलाहियात को देखें तो यीशु अल मसीह कलाम है। कौन कहता है कि यीशु अल मसीह खुदा नहीं है? खुदावंद खुदा की जात कलमा जो है वो मुजस्सम होकर जब बोलता है तो कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये तो बात नहीं है। इस तरह हो सकता है जी कि जी मेरी आवाज हो तो बात बोला मैं तो आवाज जी यूब साहब की निकले, सूबेदार यूब की आवाज निकल सकती मेरे मुंह चो? ये हम इतना गल करो कि मिमिक्री नहीं हो जाती है, ये वो गल नहीं है। इंसानी है लेकिन वो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। और खुदा को कभी साबित नहीं करना पड़ता कि मैं खुदा हूं। खुदा को साबित करना पड़ता है जी। खुदावंद यीशु अल मसीह की ये सवाल का जवाब देने लगा हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह की जाते अक़दस ने अपने बारे में ये बात कही है। खुदा को क्या है जी? जरूरत नहीं है। खुदा खुद को खुदा कहने की जरूरत है जी? खुदा को जरूरत है? कैसे हम खुदा को देख सकते हैं? खुदा को हम उसके कामों से देख सकते हैं। सूरज को देखते हैं तो कहते हैं खुदा है, सूरज को देखते हैं तो क्या खुदा है। हम पानी को देखते हैं, हवा को देखते हैं, फ्लड्स आते हैं, जब बादलों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? इस बात से स्टीफन हॉकिंस जो दुनिया का एक नंबर 1 आइंस्टाइन के बाद दूसरा आइंस्टाइन, इसको साइंसदान का साइंस में कहा जाता है, ये दूसरा आइंस्टाइन था और उसने ये बात बयान की है कि कायनात को बनाने वाला जरूर है, कायनात को बनाने वाला कोई जरूर है और वो और कोई जात नहीं है, वो खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह की जात है जिसके वसीला से कायनात वजूद में आई। अब सवाल का जवाब देने लगा। खुदावंद खुदा को अगर जानना है, खुदावंद खुदा की जात को पहचानना है तो खुदावंद खुदा की जात को बयान करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। खुदावंद खुदा को खुद बयान करने की जरूरत नहीं कि मैं खुदा हूँ। खुदावंद खुदा के कामों को देखकर इंसान कहता है कि कोई ना कोई खुदा है, और वो खुदा कौन है? यहोवा पाक खुदा की जात है। इसलिए खुदावंद खुदा ने अपने बारे में ये कहा कि तुम जो हो वो मुझ पर, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने, अगर तुम मेरा यकीन नहीं करते तो मेरे कामों को देखकर यकीन कर लो कि होकर काम करता। और कहता है कि यीशु मसीह की जात अकदस में खुदा की जात नहीं, खुदा की जात नहीं है। तो जब खुदावंद खुदा की जात जब इस दुनिया में आई, यीशु की सूरत में इस दुनिया में चलती फिरती रही, अब वो चलता है तो मुर्दों को जिंदा कर देता है, अब वो चलता है तो मादरजात घोड़ियों को अच्छा कर देता है, अब वो चलता है तो जन्म के लंगड़ों को उठा खड़ा करता है, 38 बरस के बीमार को उठा कर करता है, और वो हर एक को रिहाई बख्शता जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को रिहाई बख्शने आया। और उसने कहा मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और निजात का मतलब क्या है? रिहाई बख्शना, मखलसी बख्शना, छुटकारा बख्शना। और जब छुटकारे की बात आई तो खुदावंद खुदा ने यहाँ तक नहीं कि गुलामी जो है वो गुनाह की गुलामी से छुटकारा दिया, बल्कि क्या किया? कोड़ों से छुटकारा दे दिया, बीमारियों से छुटकारा दे दिया, बल्कि मौत से छुटकारा दे दिया, और ऐलान किया कि ऐ मौत तेरा रंग, ऐ कब्र तेरी पता कहाँ। अब क्या होता है? इंसान गुनाह की गुलामी में, बेड़ियों में क्या है? जकड़ा हुआ है। क्या है जी? जकड़ा हुआ है। और जब वो जकड़ा हुआ है तो मसीह यीशु का लहू वहां से कैसे बह रहा है जी? जब नेता लगा तो क्या हुआ था? खून और क्या निकला था? फुव्वारे की तरह ऐसे बरसा है। और जब वो बरसा, यीशु मसीह का लहू एक एक कतरा, जब एक कतरा इन हथकड़ियों पर पड़ा, एक कतरा इन बेड़ियों के ऊपर पड़ा, तो वो इस तरह आता है और वो तमाम की तमाम बेड़ियां खुदा की जात जो है उसने हमें तमाम गुनाहों से क्या कर दिया? निजात बख्शी। क्योंकि उसने फरमाया था कि वो अपने लोगों को क्या करेगा? गुनाहों से मुकद्दस कलाम में अमान की किताब 16वीं आयत में लिखा है, 12वीं आयत में, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। हालेलुया, हालेलुया। अब बात ईमान की है। बात क्या है जी? ईमान की है। और जब ईमान की बात आए तो जरूर है कि हमारे अंदर वो तमाम बातें होनी लाजमी है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, रोमियो की कलीसिया के नाम 10वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, और अगर वो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मेरे अजीजों, आज का मुकद्दस कलाम क्या कहता है? हमें खुदावंद यीशु मसीह पर क्या करना होगा? क्या करना होगा? ईमान लाना होगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और लिखा है, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तुम और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने तालियां मार। खुदावंद
कलाम के लिए ज़रूर लगाया करें। खुदावंद आपको बरकत दे। ये आयात यीशु अल-मसीह पर ईमान लाने की अहमियत की तरफ इशारा करते हैं। एक सादा और मुफ्त तोहफा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में खुदा से कितनी दूरी है, आप कितने दूर खुदा से हो चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावंद के घर में आए, मुफ्त ले, मुफ्त पाकर इस तोहफे को अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। खुदा के पास वापस लौटने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। कितने जी? कितने? कितने हैं? 10 ने, 1000 ने? कितने हैं? एक कदम जो है उठाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा और आपके दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला है। मैंने पहले बताया था कि एक साइंसदान जो थे, उसने क्या किया कि वो एक जगह पर खड़ा हो गया। साइंसदान एक जगह पर खड़ा हो गया, उसने ख्वाब देखा, क्योंकि साइंस जो है वो खुदा को नहीं मानती। वो एक जगह पर खड़ा हो गया। अब बाईं तरफ जो है वो शैतान और उसके चेले हैं, मैं फरिश्तों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, और चेले हैं। अब दाएं तरफ यीशु मसीह तो उसके फरिश्ते हैं। अब वो एक लकीर पर खड़ा है। शैतान कहता है कि चुन ले जिसको चुनना है। उसने कहा इधर तो खुदा है, मैं खुदा को नहीं मानता, तू शैतान है, तू सजा है, मैं तेरी तरफ नहीं जाऊंगा। तो जिस लाइन पर मैं खड़ा हूँ मैं वहीं पर ठीक हूँ। अब उसने एक कदम भी न बढ़ाया। जब उस लाइन पर खड़ा तो शैतान ने कहा तू बात को समझ नहीं पाया, जिस जगह पर तू खड़ा है वो मेरी जगह है। ये नहायत अफसोस की बात है, नहायत अफसोस की बात है कि हम हिलना पसंद नहीं करते, खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाना पसंद नहीं करते। वो हमारा निजात दहिंदा, हमें हर एक चीज से छुटकारा देने में कादिर है। बुराइयां हो, कैसी भी गुलामी क्यों ना हो, नशे की गुलामी क्यों ना हो, आज जरूरत है कि हम इसको समझें। तो जब उसने कहा कि तू मेरी तरफ है, तो उसने उठते ही खुदावंद यीशु अल-मसीह के ज़ेर हो गया, घुटनों के बल होकर दुआ में कहता है कि यीशु आज से मैं तेरा हूँ, मुझे अब कोई किसी की जरूरत नहीं, मेरा एक ही निजात दहिंदा है और वो खुदा की ज़ात यीशु मसीह की ज़ात है। तो मेरे अजीजों, हमें ऐसा करने की जरूरत है। अगर हम मसीही हैं तो यीशु के दावों के मुतल्लिक संजीदगी से सोचें, इन बातों को सोचें और चंद लम्हे जो है अपने गुनाहों की माफी के लिए और यीशु को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के लिए यीशु के नाम में दुआ करें। इसके बाद हम खुदा के हुजूर जो है निजात को आते देखेंगे, हम अपने लिए छुटकारा पाते देखेंगे, क्योंकि खुदा की ज़ात और उसकी रफ़ाकत में ही हमारी भलाई है। अगर हम आज मसीही हैं तो मेरे अज़ीज़ों, क्या हम आज सोचें कि निजात पा चुके हैं, क्या छुटकारा पा चुके हैं? कभी हम अब भी गुनाह के गुलाम तो नहीं, कभी हम नशे की लत में गुलाम तो नहीं, कभी आज हम कहीं शैतान की बातों को मान कर कहीं उसके गुलाम होकर तो नहीं बैठे। खुदा आज हमें इस गुलामी से निजात देना चाहता है। हमने आज़ादी जो है दुनियावी तौर पर हासिल तो कर ली है, लेकिन कहीं हम रूहानी तौर पर गुलाम तो नहीं। अगर हम गुलाम हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल से ईमान लाकर और मुंह से इकरार करके क्या करें, अपना निजात दहिंदा माने, और जरूर है कि खुदावंद आपको छुटकारा देगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपकी रिहाई बख्शेगा, खुदावंद आपकी हर एक बात में रहनुमाई करेगा कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरी रहनुमाई करता हूँ, मुझसे ले, ये मुफ्त तोहफा है। और लिखा है कि फजल से, ये अमालों के सबब से नहीं है, ये फजल के सबब से हमें क्या है, निजात मिली है। और फजल के सबब से जरूर है कि मुफ्त मिली, तो हमें चाहिए कि हम इसको हासिल करें और अपनी जिंदगियों को निजात याफ्ता जिंदगी बनाएं। खुदा इस कलाम मुकद्दस को इसी तरह से हमको बरकत दे। आमीन।